Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is infrared spectroscopy. In previous lecture, we have discussed about IR spectroscopy and IR regions. Today, we will discuss theory principle of IR spectroscopy and theory of molecular vibrations. The first, principle of infrared spectroscopy. Mainly, infrared spectroscopy is vibrational rotational spectroscopy. The absorption of infrared radiations causes an excitation of molecule from a lower to the higher vibrational level. We know that vibration level is associated with a number of closely spaced rotational level. Clearly, the infrared spectra is considered as vibrational rotational spectra. All the bonds in a molecule are not capable of absorbing IR energy, but only those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb in IR region. Such vibrational transitions which are accompanied by a change in the dipole moment of the molecule are called IR active transitions. These are responsible for absorption of energy in the IR region. On the other hand, the vibrational transitions which are not accompanied by a change in dipole moment of the molecule are not directly observed, and these are IR inactive. For example, vibrational transitions of CO, C double bond O, NH and OH, etc. Bonds are accompanied by a change in dipole moment and thus absorb strongly in IR region. But transitions in carbon-carbon bonds in symmetrical alkenes and alkynes are not accompanied by the change in dipole moment and hence do not absorb in the IR region. तो इस तरह से ये प्रिंसिपल है. तो मेनली जो है, अगर कंपाउंड में डायपोल मोमेंट है, इफ कंपाउंड है डायपोल मोमेंट, सो दे आर IR एक्टिव. अगर डायपोल मोमेंट नहीं है, किसी कंपाउंड में चेंज नहीं होता डायपोल मोमेंट, तो दे आर IR इनएक्टिव. तो इस तरह से ये थ्योरी है और ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसको कहा जाता है. पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया था. वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे बोला जाता है और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहा जाता है. Now, theory of molecular vibrations. Absorption in the IR region is due to the change in the vibrational and rotational levels. When reactions or radiations with frequency range less than 100 cm inverse are absorbed, molecular rotation takes place in the substance. Molecular vibrations are set in when more energies radiation in the region 10 to the power 4 to 10 to the power 2 centimeter inverse are passed through the sample of the substance. The absorption causing molecular vibration is also quantized. Clearly, a single vibrational energy change is accompanied by a large number of rotational energy changes. Thus, the vibrational spectra appear as vibrational rotational bands. In the IR spectroscopy, regions 2.5 mu to 15 mu micron means the absorbed energy brings about predominant changes in the vibrational energy, which depends upon these factors. First, masses of the atoms present in a molecule. Second, strength of the bonds. And third is the arrangement of atoms within the molecule. इन तीनों पे depend करती है. It has been found that no two compounds except the enantiomers can have similar infrared spectra. तो ये प्रिंसिपल और ये इस थ्योरी से क्लियर हो गया कि कोई भी जो दो कंपाउंड है उनका IR स्पेक्ट्रा सिमिलर नहीं हो सकता एक्सेप्ट enantiomers. enantiomers को छोड़ के किसी का भी IR स्पेक्ट्रा जो है सिमिलर नहीं हो सकता. और दूसरी जो
इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो कंपाउंड में डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। तो ये थ्योरी है। नाउ द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो मेनली दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। What is stretching vibrations? In this type of vibrations, the distance between the two atoms increases or decreases, but the atoms remain in the same bond axis. जैसे फिगर में दिख रहा है, फिगर A is showing stretching vibrations. जैसे यहाँ इसको हम बता सकते हैं कि एटम्स जो है मॉलिक्यूल में ये बॉल की तरह है, और ये बॉन्ड्स जो है इनके बीच में ये स्प्रिंग की तरह है। तो जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसी तरह से ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिस्टेंस, पर इनका बॉन्ड एक्सिस जो है वो सिमिलर रहेगा। तो ये है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। नाम से ही जैसे जान रहे हैं हम, बेंड होते हैं, जैसे यहाँ ये शो कर रहा है कि इसको हम बेंड करते हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस द पोजीशंस ऑफ द एटम्स चेंज with respect to the original bond axis. We know that more energy is required to stretch a spring than that required to bend it. Thus, we can safely say that stretching absorptions of a bond appear at high frequencies. High frequencies means higher energy as compared to the bending absorptions of the same bond. तो इसमें जो है खींचने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेच करने में कंपेयर टू बेंड करने में, उसको मोड़ने में जो है कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। The various stretching and bending vibrations of a bond occur at certain quantized frequencies. When IR radiation is passed through the substance, energy is absorbed and the amplitude of that vibration is increased. From the excited state, the molecule returns to the ground state by the release of extra energy by rotational, collision or translational processes. As a result, the temperature of the sample under investigation increases. तो ये दो तरह के जो है मेनली वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ stretching vibrations. There are two types of stretching vibrations, symmetric and asymmetric. जैसे फिगर में दिख रहा है, these are symmetric stretching and these are asymmetric stretching. So this is the types of stretching vibrations. First is symmetric stretching. In this type, the movement of the atoms with respect to a particular atom in a molecule is in the same direction. जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है, दोनों का मूवमेंट जो है ये सिमिलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाएगी। एसिमेट्रिक में क्या है, इन दिस वाइब्रेशंस वन एटम अप्रोचेस द सेंट्रल एटम व्हाइल द अदर डिपार्ट्स फ्रॉम इट। जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ये सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये दूर जा रहा है, तो इस तरह से ये इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई, तो ये कहलाते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग में, सिमेट्रिक में सिमिलर डायरेक्शन में, और इसमें जो है स्ट्रेचिंग होती अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये दोनों जो है एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशंस के। सेकेंड टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस, डिफॉर्मेशंस भी बोलते हैं इनको। बेंडिंग वाइब्रेशंस आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट इज सीजरिंग, रॉकिंग सेकेंड, वैगिंग थर्ड एंड फोर्थ इज ट्विस्टिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सीजरिंग मीन्स सीजर लाइक मूवमेंट। इन दिस टाइप टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर। जैसे ये फिगर है 3.4, दिस इज शोइंग द सीजरिंग वाइब्रेशंस। अब सीजरिंग में क्या हो रहा है, मूवमेंट लाइक सीजर, जैसे कैंची चलती है, दोनों जो है ये इस तरह से इनका वाइब्रेशन हो रहा है, एक इधर है और ये इस डायरेक्शन में। तो टू एटम अप्रोचेस ईच अदर लाइक सीजर, ये है सीजरिंग वाइब्रेशन। सेकेंड इज रॉकिंग वाइब्रेशन। इन दिस टाइप द मूवमेंट ऑफ
atoms takes place in the same direction. रॉकिंग जैसे है ना, ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो रहा है, मीन्स बोथ विल मूव टुगेदर बट बॉन्ड एंगल विल बी सेम. ये बॉन्ड एंगल इसमें जो है सेम रहेगा, बट बोथ विल मूव टुगेदर. दिख रहा है आपको, दोनों एक साथ यहाँ एक साथ मूव कर रहे हैं, इसे बोला जाता है रॉकिंग वाइब्रेशंस. थर्ड इज वेगिंग. वेगिंग, टू एटम्स मूव अप एंड डाउन द प्लेन with respect to the central atom. ये यहाँ पे दिख रहा है अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसमें होगा either above the plane, इससे शो हो रहा है either above the plane और below the plane. Both atoms will move together. ये दोनों एक साथ ही हो रहा है, या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा. Two atoms move up and down, तो above the plane, up and down. पर दोनों जो है मोमेंट दोनों का साथ में होगा, इसे बोलेंगे वेगिंग वाइब्रेशंस. ये सब नाम से ही इसको जो है ये डिनोट हो रहे हैं. लास्ट है ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस. ये फिगर है, इसमें दिख रहा है, ये ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट कर रहे हैं. इन दिस टाइप वन ऑफ द एटम्स मूव्स अप द प्लेन while the other moves down the plane with respect to the central atom. ये इसमें दिख रहा है, जैसे इनमें डायरेक्शन सब क्या है, इनमें डायरेक्शन सेम थी, अब इनमें डायरेक्शन अपोजिट हो गई. ये दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इधर है, इस तरह से इधर डायरेक्शन जा रही है और इधर है, तो डायरेक्शन इज अपोजिट. वन इज गोइंग अपसाइड, दिस वन इज गोइंग अपसाइड एंड अदर इज गोइंग डाउनसाइड. दिस इज शोइंग हियर, वन इज गोइंग अपसाइड एंड अदर इज गोइंग आउटसाइड. सो अप एंड डाउन मीन्स ट्विस्टिंग. तो जहां इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं वो कहलाते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस. तो ये जो है टाइप्स हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के और बेंडिंग वाइब्रेशंस के. तो ये प्रिंसिपल आईआर रेडिएशन का, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो गई. अब इसमें दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसे कहा जाता है. इसमें पीक्स मिलते हैं स्पेक्ट्रा में डिफरेंट, और मेनली जो है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में इसका यूज़ होता है. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए और सिंथेटिक वर्क के लिए, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आइडेंटिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं स्ट्रक्चर का. और रिक्वायरमेंट जो है कंपाउंड है डायपोल मोमेंट, वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. और दो कंपाउंड जो है उनका आईआर स्पेक्ट्रा कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता एनेंशियोमर्स को छोड़कर. एनेंशियोमर्स जो है उनको छोड़कर बाकी सबका आईआर स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है, और वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये कहलाता है. जैसे हमने पहले पढ़ा था यूवी विजिबल, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता था. उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता था, डिफरेंट ट्रांजिशंस हमने पढ़े थे, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड सब पिछले हम कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. इसमें इससे जो है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है.